صرف دل جیسی بنی. ایک بہن بازی ہوتی ہے کہ آپ کو صرف آنکھ پر شعر سنانا چلتے، زلف پر. زلف کہتے ہیں، گیسو بھی کہتے ہیں، زلف بھی کہتے ہیں، تھوڑے سے پریشان بھی کہتے ہیں، لوگوں کی نہیں ہے، اتنی لمبی نہیں ہے زلف. تو یہ سب اس پر ہے، لبوں پر، ہونٹوں پر ہے، محبت پر ہے، بے وفائی پر ہے. وہ کہتے نہیں کہ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، شاید انہیں تلاش کسی بے وفا کی تھی. ارے دوبارہ بولیے. ارے ابھی فی الحال اس کو بولے بول جاتا ہے. ہم بے وفا تھے، ہم با وفا، با وفا تھے وفادار، با کو جگاتے با عزت اور بے عزت. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے. ہم بھی بتا دیں با لگا دیا تو پازیٹیو ہے، بے لگا دیا تو بے عزت. اس لیے نظروں سے گر گئے. بات بلائے گا ہوشیار تو آپ نے اکثر فلموں میں بھی سنا ہے. نظروں سے گر گئے. اتنی خوبصورتی سے چھوٹا سا لفظوں کا گھیر میں بہت کچھ بدل چاہے تمہیں انہیں تلاش کسی بے وفا کی. تلاش کسی بے وفا کی. تلاش کسی لیے نہ با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، شاید انہیں تلاش کسی بے وفا کی. ہاں تو یہ اسی لیے میں آپ کو فلحال مثالی میں سنا رہی تھی، انہیں مزاحمت کر رہی تھی رب العالمین. تو نام ہی ان کا ایسا ہے. بڑی چھوٹے غزل ایک صاحب کھڑے ہو کے آ کے ہم سے کہنے کے بہن جی پیناک جی سے کہیے کہ کوئی بھٹکتی ہوئی غزل سنائے. پیناک کا تو یہ اتنا سا کرے کہ صاحبہ جی اس کو ہٹائیے. میں نے سنبھالا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ غزل سننے آئے ہیں، بندی کو لگائیے، نقطہ جو لگانے کا ہوتا ہے بندی کو لگائیے. اس طرح سے بھی کہ لوگ سننے کے شوق رکھتے ہیں لیکن صحیح تلفظ نہ ہونے کی وجہ سے بڑی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. ہاں اب کون پڑھے گا؟ ابھی بھی ہاں باقی اور بڑے ہو گئے. کوئی بات نہیں تو چلو پاپا سے شروع کرو. کے پڑھیے. میں افسانہ کیوں کر لکھتا ہوں، میرے قصے اکثر میرے قصے نہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں، بولنے کی بات ہے، یہاں نکلنے کی بات ہے. ووکل کارڈز میں میرے قصے شاباش. اکثر کسی نہ کسی مشاہدے یا تجربے پر مبنی ہوتے ہیں. شاباش. اس میں ڈرامائی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت اچھا. محض کسی واقعے کے اظہار کے لیے میں کہانیاں نہیں لکھتا. میں اس میں کسی فلسفیانہ یا کسی جذباتی حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. جب تک اس قسم کی کوئی بنیاد نہیں ملتی میرا قلم ہی نہیں اٹھتا. بعض اوقات تاریخ کے مطالعے سے پلاٹ مل جاتے ہیں. کتاب بھائی آپ کتنی ترقی کی بتائیے ذرا. میں افسانہ کیوں کر لکھتا ہوں، میرے قصے اکثر کسی نہ کسی. میرے آپ کا ذرا بول کے بولیے جو لکھتے ہیں ان کو ذرا صاف. میرے قصے بولا صحیح آپ نے. میرے قصے اکثر کسی نہ کسی واقعے یا تجربے پر
मबनी होते हैं, उस पर ड्रामाई कैफियत पैदा करने की कोशिश करता हूँ कोशिश करता हूँ, मगर महज किसी वाक़े के इजहार के लिए मैं कहानियाँ नहीं, मैं उसमें फलसफियाना या जज्बाती हकीकत का इजहार करना चाहता हूँ। जब तक इस किस्म की कोई बुनियाद नहीं मिलती, मेरा कलम भी नहीं उठता। बाद औक़ात तारीख के मसाले से भी बात की जाए। ये इसी तरह से अब इसको बार बार पढ़िएगा, बार बार पढ़िए, हो सकता है कि खुद को रिकॉर्ड कर लीजिए और कानों को सुनिए। यहाँ तलफ़ुज़ सही किया जा रहा है, यहाँ तलफ़ुज़ सही किया जा रहा है, ज़बान नीज़ है। वो कहते नहीं कि वो मैंने उस दिन सुनाया था ना कि वो ज़बान जब लड़खड़ाती है, वो शेर सुना था, सरे हश्र वो रोग छाया था उनका, सरे हश्र वो रोग छाया था उनका, दमे शिकवा, मतलब शिकायत करते वक्त अल्लाह मियाँ के सामने खड़े हुए हैं और शिकायत कर रहे हैं, सरे हश्र वो रोग छाया था उनका, दमे शिकवा लुकनत दबा, दमे शिकवा लुकनत दबा लड़खड़ा रही थी। मैं कहने को ये था कि कातिल यही है, मगर मुँह से निकला ये कातिल नहीं है। मगर तुझे इस तरह की शिकवा लुकनत ये लफ्ज़ जो है ज़बान का लड़खड़ाना मतलब है कि निकला ज़बान का रही थी। मैं कहने को ये था कि कातिल यही है, मगर मुझसे निकला कातिल कातिल नहीं है। और कौन आप पढ़िए बोला मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ, मेरे किस्से अक्सर किसी न किसी मशाहिदे या तजुर्बे पर मबनी होते हैं, उसमें ड्रामाई कैफियत पैदा करने की कोशिश करता हूँ, मगर महज किसी वाक़े के इजहार के लिए मैं कहानियाँ नहीं लिखता। मैं उसमें किसी फ़लसफ़ियाना या किसी जज्बाती हकीकत का इजहार करना चाहता हूँ। जब तक इस किस्म की कोई बुनियाद नहीं मिलती, मेरा कलम ही नहीं उठता। बाज़ औक़ात तारीख़ के मताले से भी प्लॉट मिल जाते हैं। ये अगला क्लास यही देंगे। एक कुमार बाराबंकी है, शायरी है, उसमें बहुत अच्छी शायरी, तो उनका एक प्रोग्राम बाराबंकी में हुआ था, कंडक्ट किया था, तो उनकी गज़लें दूसरे लोगों ने गाई थी। तो कहने कि मैं अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा हूँ, तो जब वहाँ से वापस आए, मेरा बाराबंकी अक्सर जाना, मैंने उनसे पूछा कैसा लगा, कहने लगे मैं गलत वक्त में सही जगह कि मैंने खुद सुना है उसे, मैं अपना पहले जाता तो बेहतर होता है। मैं गलत वक्त में सही जगह। उन्हीं की एक गज़ल है, बहुत मशहूर है, सब जानते हैं, मगर ज़रा शायराना माहौल पैदा करने के लिए, एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, ये मोमेंट सेंचुरी है। एक पल में जो अच्छा लगे लिख लीजिएगा, वरना मैं फ़ोन कर दीजिएगा, बता दूँ, अभी इंजॉय करूँगा प्रोग्राम। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 पल की ज़िंदगी का मज़ा हमसे पूछिए। अब अगर इसी को कोई ऐसा पढ़े कि एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, तो सारा मज़ा चला। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 पल की ज़िंदगी का मज़ा हमसे पूछिए। हंसने का शौक़ हमको भी था आपकी तरह। वो वाकई दिल से बहुत उदास थी, उनकी औलादों ने उनको बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई, ख़ास तौर से अंदर से बहुत ही, मतलब मेरी अक्सर उनसे गुफ्तगू होती थी। हंसने का शौक़ हमको भी था आपकी तरह, हंसिए मगर हंसी की सज़ा हमसे भूले हैं, ये है भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मज़ा, खुदकुशी का मज़ा, मोमेंट बाय मोमेंट आई जाए, मोमेंट बाय मोमेंट। किस्तों, ये इसका मतलब है कि ख़त्म कीजिए ये कि आप लोगों से महरूमी रहती है, आज हमने सोचा कि जुड़ जाए चल के। हमने सोचा आप पूछेंगे किस्तों में खुदकुशी कैसे की जाती है? तो खतरनाक माहौल हो जाएगा। किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए,
जलते हुए घरों में दिए जैसी लौ कहाँ, जलते हुए घरों में दिए जैसी लौ कहाँ, सरकार रोशनी का मजा हमसे करे। तो दिवाली पर आप लिख लीजिए अपने घर के सामने कि अल्लाह न करे किसी का घर जले, उसमें कोई लौ नहीं आती है। वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, बड़ा अच्छा शेर है। वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, आँखों की मखमली का मजा मखमली कहते जासूसी, आँखों ने बताया। तो वाकई उन्होंने सही कहा था कि सही गलत वक्त में सही जगह आए हैं। इसीलिए अब आपने जो लिख दिया मेरे ख्याल में एक और मैं देखूँ इनकी डायरी तैयार हो जाएगी। अच्छा एक है कि बस आपकी ये इजाज़त चाहिए। बस इसके बाद वहाँ बैठ के 2 मिनट चाय पी के फिर हम लोग अपना मर्सी वाला है फिर मर्सी वाला जो ये मैं सुनना चाहती हूँ। आज मेरे घर में वो बाइक लेने आ रहे हैं टीवी से, उन्होंने उनको टाइम दिया है 8। हाँ पर है बाइक लेने आपको उसने नींबू पानी दिया मेरे अंधे ख्वाबों को उसूलों की तराजू दे दे, मेरे अंधे ख्वाबों को उसूलों की तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात के मेरे अंधे ख्वाबों को उसूलों की तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। ये मेरा पसंदीदा शेर है कि मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूँ, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूँ, एक कतरा भी समंदर है अगर तू, मैं समंदर किसी गैर के हाथों से न लूँ, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दो। खुददारी की है, खुददारी कहते हैं आत्मसम्मान से। और मैंने आंगन में लगा रखे हैं कुछ रंग गुलाब, मेरे आंगन में लगे थे मुझे ये शेर, मैंने आंगन में लगा रखे हैं कुछ रंग गुलाब, देने वाले मेरे फूलों को खुशबू। मैंने आंगन में लगा रखे हैं कुछ रंग गुलाब, देने वाले मेरे फूलों को खुशबू दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का तरीका, जीने का हुनर भी दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, बारों बख्शे है तो तौफीक सफर, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, बारों बख्शे है तो तौफीक सफर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप वो हैं जिनसे मिलकर ये जहाँ अच्छा लगा, ये ज़मीन अच्छी लगी, ये आसमां अच्छा लगा। Thank you so much.